Hello dear students. So today we are going to start with our continuing topic of colligative properties, and today's topic is osmotic pressure and osmosis. Okay, it is also a colligative property because it is dependent upon the molar mass of the solutes. Okay, so whichever colligative properties is there, it is dependent upon molar mass or mass, like this. So here when we are speaking about osmotic pressure, what do you mean by osmosis? We will get explained in brief about this also. But first of all, what is osmotic pressure? And it is associated with, so here you can see osmotic pressure is associated with the vapor pressure lowering. Okay, this term vapor pressure lowering and can be used to determine the molar masses of dissolved solutes. Okay, where it is used and why it is used? It is used to determine the molar masses of dissolved solutes. So these 2 points are important because when we speak about pressure, osmotic pressure, vapor pressure, we are concerned with vapor pressure lowering, means there will be lowering in vapor pressure during the process of osmosis, and it is used to determine the molar mass, hence it is a colligative property. One by one we will see all the points or new terms. So first new term is semi-permeable membrane. So for semi-permeable membrane, in short we can write as SPM. Okay, so what is semi-permeable membrane? Semi-permeable membrane, it is a film such as cellophane. I think you might have seen cellophane transparent sheets. It is also used to wrap the vegetables. Okay, so this cellophane is made up of cellulose. Okay, cellulose or copper ferrocyanide also. Cellophane semi-permeable membranes are available. It is the content of cellophane. Okay, semi-permeable means there will be a permeability, means passage. Okay, passage of molecules through a membrane, but not a complete passage, only some molecules can pass, so therefore semi. Okay, पता है ना सबको सेमी मीन्स क्या होता है? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पास नहीं होंगे, कुछ डेफिनेट साइज के ही मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं. सो cellophane is the mostly used semi permeable membrane. It has pores large enough to allow the solvent molecules to pass through them. Okay, large space will be there. Okay, large pores will be there. These pores will allow only solvent molecule to pass through them and not the solute. So this point is important कि कौन से मेंबर्स जाने वाले हैं? सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जाएंगे, सोल्यूट नहीं जाएंगे, तभी सेपरेशन होगा और तभी हम जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स बचे हैं उसका हम मोलर मास निकाल सकेंगे. नेक्स्ट, these pores are small enough not to allow the passage of large solute molecules or ions of higher molecular mass through them. Okay, these pores कैसे है? वो pores जिससे सिर्फ solvent molecules जो है जितने साइज के रहेंगे वो कॉमन रहेगा, वो solvent molecules तो पास हो सकेंगे पर solute नहीं हो सकेगा. Another point is SPM means semi-permeable membrane allows selectively passage of solvent molecules. Okay, selective passage है, obviously separation करना है तो solvent molecules ही जाएंगे, solute molecules नहीं जाएंगे. Now, another new term is osmosis. What do you mean by osmosis? This is the phenomenon of the flow of solvent through a semi-permeable membrane from a pure solvent to the solution is called as osmosis. Okay, what it is? It is the phenomenon of flow of solvent. कहाँ से फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास हो रहा है सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन. ठीक है,
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. Next point is, for these two solutions, okay, there will be two solutions or a solution and a pure solvent of different concentration are separated by semi permeable membrane. जिनका हमको ऑस्मोसिस करना है उसका हम क्या करेंगे, दो सॉल्यूशंस लेंगे, ठीक है, या फिर एक सॉल्यूशन और एक प्योर सॉल्वेंट रहेगा और उनका कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा, दे विल बी डिफरेंट. ओके, देयर विल बी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस एंड वो जो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस है उसको जो सेपरेट करने की प्रोसेस है वो कौन करेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. और ये जो प्रोसेस होने वाली है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस. तो एक तरीके से ऑस्मोसिस मतलब क्या है, सेपरेट करने की प्रोसेस है. ठीक है, अब दूसरा सवाल ये आता है हमारे मन में कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, कि कैसा रहेगा डायरेक्शन. तो डायरेक्शन मीन्स दोनों डायरेक्शन में जा सकेंगे. फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज इन बोथ द डायरेक्शंस. ठीक है, मीन्स राइट साइड में भी जा सकते हैं और लेफ़्ट साइड में भी जा सकते हैं. तो कैसे जाएंगे अभी हम आगे स्ट्रक्चर इसका फिगर वगैरह पूरा देखेंगे. तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज इन बोथ द डायरेक्शंस एंड रेट ऑफ पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू द सॉल्यूशन और फ्रॉम मोर डाइल्यूट टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड. ऑब्वियसली जब सॉल्यूशन डाइल्यूट रहेगा तो मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे, स्प्रेड आउट रहेंगे. तो स्प्रेड आउट रहेंगे तो उनके पास स्पेस ज़्यादा रहेगी मूवमेंट करने के लिए. तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड के तरफ जाएंगे. ओके, तो हमको अगर डायरेक्शन का नहीं समझ में आया तो हम थोड़ा लॉजिक लगाएंगे उसमें कि मोर डाइल्यूट टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड के तरफ जाएंगे और ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज़ ग्रेटर देन दैट इन द रिवर्स डायरेक्शन. तो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगा लेकिन ज़्यादा किसका होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मूवमेंट ज़्यादा होगा कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेटेड. क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड में मॉलिक्यूल्स के पास में स्पेस नहीं होगा मूवमेंट के लिए. तो ऑब्वियसली सो दे विल नॉट फ्लो. ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि रेट ऑफ पैसेज ऑफ सॉल्वेंट विल बी कौन से डायरेक्शन में, फ्रॉम मोर डाइल्यूट टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड. ठीक है, और रिवर्स भी हो सकता है लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी रहेगी पास होने की वो कैसी रहेगी, कम रहेगी. ओके, तो फ्रॉम मोर डाइल्यूट टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड के तरफ मॉलिक्यूल्स का फ्लो ज़्यादा रहेगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड इसके बारे में कि दिस ऑकर्स, ये क्यों हो रहा है, दिस ऑकर्स बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द सॉल्यूशन. ऐसा डायरेक्शन क्यों हो रहा है, इसके पीछे एक और रीज़न कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ सॉल्यूशन. अब क्यों ऐसा, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में है सॉल्वेंट. और जब हम एक सॉल्यूशन बना रहे तो हमने उसमें क्या डाला, सोल्यूट डाला. सोल्यूट डालने की वजह से इसके पहले भी देखा था कि अगर ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है तो इसके बीच में जो स्पेस रहेंगी वो कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, वो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर लेंगे. तो इस वजह से वो क्या करेंगे, उसके मूवमेंट को हैम्पर करेंगे, उसको थोड़ा सा स्पेस कम देंगे. तो ये जो दोनों हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स वो मूवमेंट को हैम्पर करेंगे. तो इस वजह से क्या होगा, मूवमेंट नहीं होगी तो वेपर प्रेशर कम होता जाएगा. तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ जा रहा है, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, दिस प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू द सॉल्यूशन और फ्रॉम डाइल्यूट टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रही है उसको क्या बोला है, ऑस्मोसिस, क्योंकि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हो रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है और फ्रॉम मोर डाइल्यूट टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड. तो देखो फिगर के फॉर्म में और इसको एक और बार समझेंगे क्या हो रहा है. यहाँ पे फर्स्ट इसमें देखो, दिस इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यहाँ पे सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन है. सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहाँ जा रहे हैं, सॉल्यूशन में जा रहे हैं. इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इट कैन शो मोर मूवमेंट. सेकेंड प्रोसेस सेम है,
लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज है तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन पे जा रहे हैं। यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो फ्लो ऑफ डायरेक्शन दिख रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है फ्रॉम लोअर टू हायर। सो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोला है, ऑस्मोसिस। वन मोर थिंग, द अमाउंट ऑफ लिक्विड ऑन द प्योर सॉल्वेंट साइड और मोर डाइल्यूटेड साइड डिक्रीजेस, ऑब्वियसली, क्योंकि फ्लो कहाँ से यहाँ जा रहे हैं, हाँ, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा और यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ का डिक्रीज़ होता जाएगा और यहाँ का इंक्रीज़ होता जाएगा। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी है यहाँ पर, देखो फिगर में। अगर हम ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों की बात करें तो एक हमने एक ऐसा इन्वर्टेड क्या लगाया है, फनल जैसा लगाया है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्लेस की है, सॉल्यूशन लिया है शुगर सॉल्यूशन एक बीकर में, और उसमें शुगर प्लस वाटर है, और यहाँ से हम लोग उसका एक टेस्ट ट्यूब लगाएं या फिर ट्यूब है इसको कनेक्टेड, जो कि इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बताएगी। तो क्या होगा, जब सॉल्यूशन इसमें रहेगा तो जैसे ही हम उसको इन्वर्टेड डीप करेंगे ये कंटेंट को, या फिर हम बोलेंगे इसको थिसल ट्यूब बोलते हैं इसको, इस थिसल ट्यूब को अगर हमने प्लेस किया इसके अंदर तो सॉल्यूशन एक लेवल तक के इस ट्यूब में जाएगा और वहाँ पे जाने के बाद में इट विल स्टॉप। ओके, तो सी हियर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज फर्मली फास्टन अक्रॉस द माउथ ऑफ द थिसल ट्यूब। ठीक है, प्लेस किया है हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये थिसल ट्यूब के माउथ पे। सॉल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इज फर्मली फास्टन अक्रॉस द माउथ ऑफ द थिसल ट्यूब। यहाँ पर हमने शुगर सॉल्यूशन प्लेस किया है। दिस पार्ट ऑफ द ट्यूब एंड द मेम्ब्रेन आर देन इमर्स्ड इन अ कंटेनर ऑफ प्योर वाटर। ये जो यहाँ पे सॉल्यूशन प्लेस किया है हमने, इसको हमने किस में प्लेस किया, शुगर सॉल्यूशन थिसल ट्यूब में है, और उसको हमने इन्वर्टेड किस में डिप किया है, वाटर सॉल्यूशन में डिप किया है, वाटर में डिप किया है उसको। ठीक है, तो इस टाइप का अरेंजमेंट है। आगे देखेंगे क्या हो रहा है इसमें। सम ऑफ द सॉल्वेंट पासिस थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू द सॉल्यूशन। क्या हो रहा है, सम ऑफ द सॉल्वेंट passes through the membrane into the solution. The liquid column in the tube creates hydrostatic pressure that pushes the solvent back through the membrane into the container. कुछ लेवल तक के यहाँ पर ये जो है सॉल्यूशन वो कहाँ जाने वाला है, ट्यूब में जाएगा, और उसके बाद में वहाँ जाने के बाद में इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, वापस सॉल्वेंट नीचे आ जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इट पुशेस द सॉल्वेंट बैक थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू द कंटेनर। द कॉलम ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब कंटिन्यूज टू राइज एंड इवेंचुअली स्टॉप्स। ओके, ट्यूब में एक लेवल तक के जाएगा सॉल्यूशन और फिर बाद में वो स्टॉप हो जाएगा। At this stage, hydrostatic pressure developed is sufficient to force the solvent molecules back through the membrane into the container at the same rate they enter the solution. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो डेवलप हुआ है वो क्या करेगा, वो एक इतना रहेगा कि जिस लेवल से या जिस फोर्स से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऊपर आए थे उतने ही फोर्स से वो वापस नीचे कंटेनर में चले जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, An equilibrium is thus established where the rate of forward and reverse passages are equal. ठीक है, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जिस स्पीड से टेस्ट ट्यूब में गया था ऊपर की ट्यूब में उतनी ही स्पीड से नीचे भी आ जाएंगे, तो एक इक्विलिब्रियम बोलेंगे हम उसको। सो हाइट ऑफ अ लिक्विड कॉलम इन द ट्यूब रिमेन्स कॉन्स्टेंट। दिस इम्प्लाइज दैट द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हैज स्टॉप्ड ऑस्मोसिस। एक हाइट आने के बाद में वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो इसके लिए किसके वजह से हो रहा है, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से हो रहा है कि एक कांस्टेंट हाइट आने के बाद में फिर सॉल्यूशन ऊपर नहीं जाएगा। इसमें एक नोट है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जिस्ट ओनली व्हेन द सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्वेंट बाय अ सुटेबल काइंड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
सेपरेशन के लिए हमको हर जो सॉल्वेंट और सोल्यूट होता है उसके हिसाब से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ करनी होती है। ओके, तो ये था पूरा थियरी पार्ट इसका। इसके बाद में इसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूलेज है, वो सब भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इन्वर्टेड थिसल फनल है, इसमें हम शुगर सॉल्यूशन प्लेस कर रहे हैं, वाटर में डिप किया है इसको, और जैसे ही वाटर में डिप करेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में शुगर सॉल्यूशन जाएगा, एक नया सॉल्यूशन तैयार होगा और फिर रिवर्स जो है इस ट्यूब में सॉल्यूशन जाने की कोशिश करेगा। मेम्ब्रेन में से वाटर मॉलिक्यूल्स में से शुगर मिक्स होके जो नया सॉल्यूशन तैयार होगा वो इस ट्यूब में जाने की कोशिश करेगा और फिर एक स्टेज पे जाने के बाद में वो स्टॉप हो जाएगा। दोनों टाइम पे क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। वो इक्विलिब्रियम कब मेंटेन होगा कि जितनी स्पीड से ऊपर गया था उतनी स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी लिक्विड आएगा, ठीक है। तो दिस प्रोसेस एक बार इतना एक हाइट आ गई तो वो स्टॉप हो जाएगा प्रोसेस, इसलिए दैट प्रोसेस मतलब ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है, मतलब सॉल्यूशन का जाने का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट स्टॉप्स द ऑस्मोसिस इज एन ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हमने किससे डिनोट किया है, पाई से। सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इक्वल टू एच रो जी। एच क्या है, हाइट ऑफ द कॉलम, रो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि इन्वर्टेड रखा है तो ग्रेविटी वहाँ पर मैटर करेगी इसलिए, ठीक है। इसके बाद में कुछ टर्म्स है इससे रिलेटेड, वो देखेंगे हम लोग। फर्स्ट टर्म इज आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस मतलब क्या, जिसमें क्या होता है, टू और मोर सॉल्यूशंस हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर सेम सेट टू बी आइसोटोनिक। आइसो मीन्स सेम, तो एक या दो सॉल्यूशन, दो या उससे ज़्यादा सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा रहेगा, सेम। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन एंड 0.1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक। ये दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, क्यों, बिकॉज देयर ऑस्मोटिक प्रेशर्स आर इक्वल, दे हैव सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशंस बट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, ठीक है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम है दोनों के, 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन है, तो इन दोनों का क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल आता है, उसकी वैल्यू जो होती है वो इक्वल आती है, इसलिए वो दोनों क्या है, 0.1 मोलर आइसोटोनिक। इफ़ दिस सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देयर इज नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन आइदर डायरेक्शन। ये जो है 0.1 मोलर यूरिया और 0.1 मोलर सुक्रोज अगर हम लेते हैं तो इनका एसपीएम जो है सॉल्यूशन, एसपीएम से अगर हमने इसको सेपरेट किया तो सॉल्वेंट फ्लो नहीं होता है कोई भी डायरेक्शन में, ठीक है, क्यों, क्योंकि उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कैसा है, इक्वल है, उसकी वजह से। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब हाइपर मीन्स ज़्यादा और हाइपो मीन्स लेस। तो इफ़ टू सॉल्यूशंस हैव अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन विद द हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेड टू बी हाइपरटोनिक, बराबर है। एंड इफ मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन एग्जिबिटिंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर इट इज सेड टू बी हाइपोटोनिक, ठीक है। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मीन्स कम। तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन लोअर और भी कम ऑस्मोटिक प्रेशर दिखाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एग्जाम्पल है इसका, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर देंगे। तो अगर सुक्रोज का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो द सुक्रोज सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक टू यूरिया, ओके। अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिए दोनों के तो अगर इनके सुक्रोज का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे कि वो कैसा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक। एंड यूरिया सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक टू सुक्रोज। सुक्रोज का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है इसलिए वो हाइपरटोनिक, और यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर कम इसलिए वो हाइपोटोनिक है करके हम ऐसा बोलेंगे,
तो these are all the examples और कुछ terms, ठीक है. अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे हम. नेक्स्ट देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो इसमें फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर फॉलोज पाई इक्वल टू N2RT/V. ठीक है, पाई मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, N2/V. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने लगेंगे वो, R गैस कांस्टेंट रहे, T इज टेम्परेचर एंड V इज द वॉल्यूम. ठीक है, V इज वॉल्यूम इन dm³, N2 इज द मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, R इज गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू पता होगी शायद से 0.8206 dm³ एटमोसफियर पर केल्विन पर मोल. सो पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को, न्यूमेरिकल्स है इस पे बेस्ड. इसके बाद में इसको N2/V जो टर्म है इट इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म है. इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी तो हम उसको किससे सब्सटीट्यूट कर देंगे, M से सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो पाई इक्वल टू MRT. अब मोलैरिटी ही क्यों कंसिडर करना है, मोलैरिटी इसलिए कंसिडर करना है क्योंकि ये जो प्रोसेस होगी वो कब होगी, एट स्पेसिफिक कांस्टेंट टेम्परेचर होगी एंड नॉट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं है इसलिए मोलैरिटी कंसिडर नहीं कर रहे. मोलैरिटी करेंगे क्योंकि इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रिएक्शंस होती है इसीलिए. इसके बाद में मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, यही निकालना है हमको. तो उसके लिए और फर्दर डेरिवेशन कि पाई इक्वल टू N2RT/V. अभी हमने फॉर्मूला देखा. इसमें इफ़ मास ऑफ सोल्यूट इज़ इन V लीटर्स ऑफ सोल्यूशन इन W2 एंड सोल्यूट का मास कितना है, W2 है, एंड इट्स मोलर मास इज M2. ठीक है, देन N2 इक्वल टू W2/M2. ओके, ये वैल्यू क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है. तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, पाई इक्वल टू W2RT अपॉन M2/V. ओके, देयरफॉर अगर M2 निकालना है मोलर मास तो M2 इक्वल टू W2RT/V. सिंपल सा है, सिर्फ एक इक्वेशन फर्स्ट भी याद रखा तो चलेगा. उसमें हमको N2 की जो वैल्यू है उसको हमको सब्सटीट्यूट करना है जो कि क्या है W2/M2. इसको पुट करने का देखना है, मोलर मास निकालना है तो. ठीक है, वेट दिया हुआ रहा, सोल्यूट का मोलर मास गिवन रहा तो हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना है. नहीं दिया रहा, डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स गिवन रहे तो फिर फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करना है. दिस इज़ अ मोर प्रिसाइज मेजरेबल प्रॉपर्टी देन अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर प्रिसाइज. ठीक है, एक छोटा सा टर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस का. रिवर्स मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन. तो उसके लिए इफ़ द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स बाय अप्लाइंग अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर. अगर कोई भी प्रोसेस को रिवर्स करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा. तो अगर प्रोसेस को भी रिवर्स करना है तो लार्जर प्रेशर अप्लाई करेंगे. तो क्या होगा, द प्योर सॉल्वेंट देन फ्लोज फ्रॉम सोल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. ठीक है, छोटा सा एग्जांपल है देखो, फ्रेश वाटर का और सॉल्ट वाटर का. अगर उसके बीच में हमने क्या किया, सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर है, उसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई और पिस्टन के हेल्प से प्रेशर ज़्यादा अप्लाई किया तो क्या होगा, सॉल्ट वाटर में से फ्रेश वाटर के कंपार्टमेंट में जाके वाटर के आउटलेट से हम उसको फ्रेश वाटर कलेक्ट कर सकते हैं. तो रिवर्स ऑस्मोसिस इज़ अ प्रोसेस फॉर ऑल्सो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. ठीक है, फ्रेश वाटर इज अ सॉल्टी एंड सॉल्टी वाटर आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड pure water is passed into the fresh water through semi permeable membrane. ओके, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी देख लेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर. सिंपल सा प्रोसेस है, प्रोसेस प्लस उसका एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है प्रैक्टिस करना है और न्यूमेरिकल के लिए इसका जो इक्वेशन है वो भी प्रैक्टिस करना है. ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ सोल्यूट if a solution prepared by dissolving 0.822 gram of it in 300 milli dm³ of water has an osmotic pressure of 149 mmHg at 298 Kelvin. So
फॉर्मूला है हमारे पास में M2 इक्वल टू W2RT/πV। फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। W2 इक्वल टू 0.822, R की वैल्यू स्टैंडर्ड है, T के 298 केल्विन, पाई की वैल्यू जो गिवन है 149 mmHg। इसको कन्वर्ट करेंगे 149 डिवाइडेड बाय 760 स्टैंडर्ड जो है उससे। उसके बाद में उसका आंसर जो आएगा 0.1968 m। V की वैल्यू ml में गिवन है, उसको dm³ में कन्वर्ट करेंगे 0.3, क्योंकि इंटू 10⁻³ से करेंगे उसको 300 को मल्टीप्लाई। तो बाकी वैल्यूज़ सारे फार्मूले में पुट करके आंसर आएगा 342 ग्राम पर मोल।